The idea of Shiva is not merely about a deity from ancient Indian mythology, it embodies a profound philosophical concept that has captivated and inspired countless individuals over centuries. Shiva, known as the destroyer and transformer, symbolizes the eternal cycle of creation, preservation, and destruction. A metaphor that reflects our own internal battles, the release of past identities, and the birth of fresh perspectives. In literature, Shiva transcends conventional boundaries, emerging elements of spirituality and enigma, offering a unique framework to explore themes of life and death, chaos and order, and the human and the divine. It is with immense pride and excitement I, Megha Pawar, extend a warm welcome to all of you to this thought-provoking session at the 6th edition of the Orange City Literature Festival, organized by the SGR Knowledge Foundation and supported by Raisori Education. Our topic, the idea of Shiva, challenges established notions and invites us to embrace both endings and beginnings, exploring its relevance in contemporary storytelling and what it reveals about our inner nature and the ceaseless cycle that shapes our world. Ladies and gentlemen, we are honored to have with us Mr. Amit Kapoor sir, an acclaimed thinker and scholar. He is the honorary chairman at the Institution for Competitiveness India and serves as an instructor and speaker at renowned institutions such as Harvard Business School and Stanford University. A recipient of the Ruth Gries Memorial Award, he has co-authored significant works like Riding the Tiger and The Age of Awakening, the story of the Indian economy since independence. His latest endeavors, including a book on Jyotirlingams with Vivek Debaroy and economics. We are fortunate to have Mr. Arun Anand, a veteran journalist and author, as the moderator for today's session. With a distinguished career that spans prestigious publication and a deep understanding of India's socio-cultural fabric, he brings a unique perspective to this conversation. His literary works include Known About RSS and translation of notable English books into Hindi, showcases his dedication to bridging cultural narratives. This topic promises to evoke deep discussion that could go on for hours, but I'm grateful to our esteemed speakers for structuring this dialogue into a focused 40-minute session, including a thought-provoking Q&A with the audience. Without further ado, I hand over the session to our respected moderator. Over to you, sir. His body of work is tremendous. So, and especially from a trained economist, coming a book like Jyotirlingam. Amit ji, I have, 3 questions which I will bundle into one. And then, you can speak about that. One is that, how did this book come about? Like, there must have been a trigger point. सेकेंड इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योतिर्लिंगास, क्योंकि आजकल बहुत बात होती है ज्योतिर्लिंग के बारे में, यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक में शॉर्ट्स, रील्स, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं. आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसको हिंदी समझने में दिक्कत हो? ठीक है, तो मैं हिंदी अंग्रेज़ी मिक्स करके बोलूँगा. और तो पहला सवाल ये है कि कैसे किताब हुई. दूसरा कि क्या महत्व है ज्योतिर्लिंगों का, जो खासकर ये जो हम सब लोग बैठे हैं, हम ज्योतिर्लिंगों का क्या हमारे जीवन में भी कोई महत्व है कि नहीं है. और तीसरा ये कि आप अपने क्या ये विशुद्ध रूप से जो है वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज थी या आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, या कोई निजी अनुभव आपके ऐसे थे जो आप शेयर करना चाहें जिसकी वजह से ये संभव हुई किताब. Thank you, Arun ji. Like, this is a very fascinating question. I'll try to speak in Hindi as well. I'm a little bad at Hindi, but not bad, but I lack the words to specify what I want. So in terms of like how did this book come about is a very interesting question, and I call it as providence. Kyunki ye destiny hai that this book happened. Vivek Da, I bow my head in front of him.
Vivek passed away about a few weeks back. In fact, this is his last book, incidentally. Dr. Vivek Debroy, who was also the Economic Advisory Council chairman, or chairman of the Economic Advisory Council. और उनका महाभारत पे बड़ा फिनोमिनल काम है बेसिकली जो है। In fact, महाभारत उनका एक छोटा काम है। अगर आप देखें, उन्होंने कम से कम 11 पुराण हैं जो ट्रांसलेट करे हैं। In fact, he is the biggest translator this country has ever seen. So Vivek Debroy is a phenomena of sorts. एक literary phenomena है, who is an economist, but also what do you call, an Indologist and somebody who was deeply ingrained in understanding religious scriptures and itihas and things. So unfortunately he passed away. This was one book that we were not able to launch. It was what do you call, it hit the stands on 15th of September, and he was in hospital after that. But again, I think the motivation of this book lies with Vivek Da itself. You know, like Vivek Da and I and the family, we were very good friends. So we were just having dinner together at home. And my son, who's also a professor at University of Dayton in Ohio, and he did this obnoxious PhD in an area called photography. So a lot of people will tend to believe, यार ये photography में PhD क्या होती है या arts में क्या होता है? So he did his computer science degree and then ended up doing a PhD in photographic sciences and or terminal degree in that. And his colleague, who was also a PhD, Connor, who was there visiting us, and we were just talking. We said, you know, like India is such an enigmatic country, and the depth of India's culture is something that need to be seen across by people in the world. They don't understand India itself. We can say a lot of things. And in that whole experience, what was happening is that I was chairing this conference at Stanford called the India Dialogue. So I chair this conference at Stanford each year and curate this conference. And what I was seeing is that the narratives on India were extreme. Either they were too left, that is too negative, too right, too positive. But the story of India was somewhere in the middle. Because there are challenges, there are positives, there are negatives, and we had to understand this beauty of culture that India has. And I also found that people were not even understanding the meaning of a Shivlinga. The profound meaning of a Shivlinga is so much there. And we were just interacting together. And we said, let's do pictures of all these Jyotirlings and possibly the 5 element temples that are there in Tamil Nadu and stuff. And we said, okay, let's do the Jyotirlingas first. And there were these 2 young blokes who were not doing anything. And I said, Vivek Da and I said, we'll fund your travel. You come along and you take the pictures because you're experts in taking pictures. So this book as a text is the first cut of the book. The second cut, which is the actual photo book that is happening on Jyotirlingams, is coming out in February this year or next year. And this is how this whole providence happened. So it was ordained by Shiva, as I always would say. It was something that dawned on us during that meeting and over a drink, I must also admit. So not that if anybody thinks that Shiva would have disliked the idea of drinking or whatever. No, that was not there. I think he was just simply, we were just conduits to this. And we decided and we went ahead. Incidentally, we were able to complete the whole trip and the whole manuscript in exactly 3 months. So it did not take us a long time. And everything that was happening was absolutely just happening so easily. We were able to go to all the Jyotirlingas in exactly 30 days. कितने ज्योतिर्लिंग? 12 हैं। 12। हाँ जी। So सब ज्योतिर्लिंग गए एक्सेप्ट केदारनाथ वाले में, क्योंकि केदारनाथ में प्रॉब्लम ये था कि उस पिछले साल अगर आपको याद हो तो बहुत ज़्यादा पानी बरसा और बहुत प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ नहीं हम लोग जा पाए। बट बाकी सब जगह खासकर ये 2 लड़के तो जा ही पाए, मैं और विवेक दा हर जगह नहीं जा पाए। बट फिर भी हम प्रीडोमिनेंट ज्योतिर्लिंगास में गए और जो हमारे वहाँ के एक्सपीरियंसेस थे वो इतने प्रोफाउंड थे जी, क्योंकि अगर आप 2 तरीके से अगर आप देखो जी, एक भक्ति से, अगर भक्ति भाव से देखें हम शिव को और एक हम उसको एक फिनोमिना की तरह देखें, दोनों के अंदर मुझे लगा था कि एक्सपीरियंस सेम ही है शायद। क्योंकि अगर भक्ति के साथ मैं अगर लीन हो गया उनमें तो ठीक है जी, वो मेरे से बड़े हैं, और मेरा ये था यार कि अगर मैं इसको इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करना है और इस एनर्जी को अंडरस्टैंड करना है और वहाँ क्या आपके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो देखने वाली चीज़ है। तो वहाँ से मेरे को देखना था। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस जो था, पहला एक्सपीरियंस जो मेरा टेम्पल में कभी रहा वो शिव जी के टेम्पल में नहीं रहा,
मैं एक टेम्पल है तिरुपति, आप सभी को पता है, तो मैं तिरुपति गया जब, और वो भी मेरा एक ऐसा ट्रिप था जो मैं किसी मीटिंग के लिए गया चेन्नई में, और मैं फ्री हो गया एक दिन पहले। तो मैंने अपने मित्र को कहा, सुबू करके नाम है उस लड़के का, सुबू यार मुझे तिरुपति जाना है, और मैंने सुना है कि वहाँ बहुत बड़ी लाइनें लगती हैं, मेरे को किसी तरह से बताओ कि कैसे करना है। और उस वक्त 8 बजे थे। सुबू सेड लेट मी ट्राई। उसने मुझे 9 बजे की किसी VIP बस में बैठाया, मॉर्निंग में VIP दर्शन करवाया, एंड आई वॉज एबल टू हैव द दर्शन एट एग्जैक्टली 5 o'clock इन द मॉर्निंग। बट जब मैं उसके बाहर निकला और जब मैं तिरुपति के बाहर बैठा था, आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड। आई वाज जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल एंड आई वाज क्राइंग फॉर द नेक्स्ट 3 hours because it was just the most profound experience that I ever had of energy, of the power of what that person is. When I say that person, what that power is that has created us or where we come from, that's an experience in itself. So वो चीज़ थी। तो वहाँ के बाद मुझे लगा कि मुझे शिव के बारे में भी देखना है। और जैसे आपने कहा कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे मेरी लाइफ के अंदर which also pushed me towards understanding। जो आपने वो ऐसे जो है मेरे साथ शेयर किया था, तो उसके बारे में, उसमें खासकर जो आपने जो है जो हीलिंग पावर्स को लेके, और फिर जब व्हेन योर सन वाज बॉर्न और आपको ये लगा कि शिव का अंश है, और लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और ये भी मैं दर्शकों को जो अपने सब यहाँ पर लोग बताना चाहता हूँ, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो अमित जी कहते हैं, वो कह रहे किताब ज्योतिर्लिंगों पर है, ठीक है ना, शिव जी की बात हो रही है, शिव के भाव में ये लीन है, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ। तो ये शिव के भाव में लीन होना और नास्तिक होना जो है, ये बातें आपको विरोधाभासी लग सकती हैं, लेकिन ये क्यों विरोधाभासी नहीं है, ये क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, आप इस पे भी बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं पहले तो कुछ आपको एक्सपीरियंसेस की बात बताता हूँ, फिर देन आई विल कम टू दिस विरोधाभास आल्सो, एंड दैट इज आल्सो ड्रिवन बाय एक्सपीरियंसेस आल्सो। मेरे 16 की एज के अंदर जी, मतलब मेरे को बहुत शौक चढ़ा एक वक्त में, आई वाज अबाउट 15 and 16 की एस्ट्रोलॉजी सीखनी। सो कहीं प्रोफाउंड आइडिया आया यार कि एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो हमारे वहाँ पे ना एक पंचकुला करके शहर है चंडीगढ़ के एकदम साथ में, तो वहाँ पे एक अघोरी बाबा होते थे। तो अब हमने कहा यार 15-year-old बॉय, दिमाग तो उस वक्त चलता नहीं, हमें ये भी नहीं समझती कि अघोरी होते क्या हैं उस वक्त, कि उनके पास मतलब उनके पास क्या क्षमता है, वो क्या करते हैं, मुझे कोई समझ नहीं थी। तो बट मैंने फॉर सम रीज़न मुझे वो अघोरी बाबा पसंद बड़े आए। मतलब ही वॉज अ डार्क मैन, लाइक डार्क एज डार्क कैन बी। आई हैव नॉट सीन अ पर्सन मोर ब्लैक देन हिम, इवन इफ यू गो टू अफ्रीका। आई एम जस्ट सेइंग ही इज डार्क एज डार्क कैन बी। वो हैं, मतलब घोरी बाबा हैं, उनको मैं उनके वहाँ पे वो बैठते थे अपना, तो मैं उनके पास जाना शुरू किया। मैंने कहा आप मेरे को जो सिखाइए, बिकॉज ही वॉज अ वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, वो देख के कुछ बता देते थे लोगों के बारे में। सो पहला इंसिडेंट उनके साथ ऐसा हुआ कि वो ऐसे ही बाहर खड़े होते थे, एंड अघोरीज हैव वेरी यूनिक हैबिट्स जो आप कभी समझ नहीं पाते हैं। ही वॉज अ स्मोकर और चेन स्मोकर थे। मतलब चेन स्मोकर ये है कि उस आदमी के हाथ से उनके हाथ से सिगरेट नीचे नहीं उतरती थी। तो मतलब ही वुड स्मोक समथिंग लाइक 200 सिगरेट्स, 150 सिगरेट्स अ डे। वो सिर्फ सिगरेट पीते थे और मतलब उसी के अंदर लीन में और उसी में कुछ करते रहते। तो वह बाहर पड़े वहाँ पे सिगरेट, एक दिन सडनली कहते गद्दी से उठ के कि चलो यार हमें बाहर खड़े होते हैं। तो क्योंकि वो कमरे में अपनी पूजा कर रहे हैं व्हाटएवर, तो मैं बाहर आया उनके साथ खड़ा हुआ, तो सडनली कोई आदमी उनसे नाराज़ हो गया। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। तो वो कहते हैं, सुंदर जी उनका नाम था, उनको मैं प्यार से सुंदर जी बोलता था और बाय रिस्पेक्ट। तो उन्होंने कहा कि भैया मतलब तुम कुछ मत करो। उस आदमी को बोला, वो आदमी माना नहीं, उसने सडनली पत्थर उठाया और मारने की कोशिश करी, और उस आदमी को मैंने अपने सामने गिरते हुए देखा। वो आदमी उसके बाद वहाँ पे सिर्फ तड़प रहा था, वो उस आदमी को हाथ नहीं लगा पाया। और कैसे हुआ, मुझे लगा यार ये कुछ है इसके अंदर जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। और मैं एक वक्त में एक एजुकेटेड आदमी अपने आप को समझ रहा हूँ, रैशनलिस्ट समझ रहा हूँ, और ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इरेशनल एक्सपीरियंस हो रहा है। और दूसरा फिर उसके बाद इंसिडेंट ये रहा, मैं उनका एक तरह से मेरे को वो काफ़ी पसंद आने लगे, और वो ये रहा कि उनके साथ मैं हमेशा इक्वल की तरह बात कर पाया था। मुझे कभी भी ये नहीं रहा कि वो मेरे से बड़े हैं। मुझे हमेशा ये रहा कि यार नहीं, मैं इनसे सीख सकता हूँ और मैं इनके साथ ही हूँ। सो फॉर मी एनी एसोसिएशन वाज ऑलवेज अबाउट इक्वल्स, नॉट अबाउट
कि यार वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनसे छोटा हूँ या वॉट एवर, मैं उनसे बड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं उनसे जिद करता रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी समय नहीं है। तो आफ्टर गुड 1 year सडनली वो एक दिन बैठे थे, कहते हैं आज मुझे जाना है कहीं। और वो ना गद्दी पे बैठते थे अपनी, आप समझते ही हैं कि गद्दी क्या है, वहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने कहा अमित आज इधर आके बैठो। तो मैं उनकी गद्दी पे जाके बैठा और बस उन्होंने मेरे सिर पे एक बार हाथ रखा। और उस दिन के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, मुझे पूरी नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की। वो मतलब मुझे और जो एस्पेक्ट रहा जिसमें खासकर प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, आई वाज, उस दिन के बाद मेरे में पता नहीं क्या हुआ, आई वाज एबल टू सी पीपल एंड टेल देम व्हेन दे आर गोइंग टू डाई। सो दैट बिकेम द मोस्ट डेंजरस एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। और मैंने डेथ को उस एक्सपीरियंस के बाद ऐसे देखा है कि जैसे मैं और ये बैठे हैं, मैंने ऐसे देखा है उस चीज़ को होते हुए। और मेरे लिए वो बहुत स्केरी एक्सपीरियंस भी था और एक प्रिडिक्टिव एक्सपीरियंस भी था। उसको मैंने काफ़ी दिन, मैंने उसके बाद पढ़ने की भी कोशिश करी, फिर मैंने बहुत समझने की कोशिश करी, बट वो चीज़ शायद एक नॉर्मल एस्पेक्ट से बाहर थी। और इसके बाद जो एक्सपीरियंसेस की बात है, मेरा बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। मतलब 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। और ये किताब जो है एक खुली किताब है, मतलब मैंने बहुत बड़ा, मेरे को लगता है मेरे को भगवान ने या शिव ने एक करेज दिया है टू शेयर दीज एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस अगर आप सुने तो आप इसको नकारा भी कर सकते हैं और शायद आप कहें यार कि कुछ एनिग्मेटिक चीज़। मैं सिर्फ एक चीज़ ये अमित जी दर्शकों के लिए वो कहना चाहता हूँ यहाँ पे, या श्रोताओं के लिए, कि जो एक्सपीरियंसेस वो बता रहे हैं वो मुझे जो लगता है वो आप उसको इस नज़रिए से देखने की कोशिश करें, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अमित जी, कि इट इज़ नॉट अबाउट अमित जीज एक्सपीरियंसेस ओनली, ये शिवा की मैनिफेस्टेशन है बेसिकली। वो ये एक्सपीरियंसेस उस शिव जो है एनर्जी की जो है वो मैनिफेस्टेशन है, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन है जो इनके माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। हाँ जी, और बिल्कुल यही था जी, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ पढ़ा, फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैंने, लोग मेरे पास आते थे, पता नहीं मुझे पत्री देखनी कैसे आ गई, मुझे समझ कैसे आने लग गया। उसके बाद मैंने पढ़ा उसके बारे में, मेरे को थोड़ा उसका मैथमेटिक्स समझ में आया, बट फिर उसके बाद मैंने बहुत किताबें पढ़ी उसके ऊपर जी, और मैंने बहुत करा, बट मैंने छोड़ भी दिया एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद मैंने 15-20 साल के बाद एस्ट्रोलॉजी नहीं करता अब मैं, कि मुझे लगा कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना, अब मुझे मतलब लगता है कि आई हैव टू मूव अहेड एंड डू समथिंग डिफरेंट। बट इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं लखनऊ गया जी एक बारी, तो मैं उस वक्त अपनी PhD कर रहा था। तो लखनऊ के अंदर मैं सो रहा हूँ एंड द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस something which was absolutely profound. And the profound thing is कि मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ या whatever, I still am hazy about that whole thing, but I can see Shiva in front of me. And he is asking me, तुम्हें क्या चाहिए? और मैं उसके ऊपर उनको कहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपको मैंने देख लिया, अब ख़त्म, अब तो जो आप कहोगे वो ठीक है, होने दो जो होता है। और मेरा तो जीवन हो गया जो होना था। फिर वो मेरे को कहते हैं कि नहीं अभी तुमने कुछ करना है, ही टेल्स मी एंड कि अभी आपको इतने साल आगे कुछ काम करना है, व्हाटएवर। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट सेट ऑफ डिटेल्स, बट दिस इज एन एक्सपीरियंस दैट डिड हैपन विद मी। तो मैं बीच में फिर से वो करता हूँ, तो ये बात जो है वो किसी मतलब उस तरीके के व्यक्ति से नहीं आ रही। 6 महीने जो है अमित जी US में रहते हैं, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, और 6 महीने भारत में रहते हैं। सो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जो है कि जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी बेसिकली वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अचीवर नहीं है, एक तो कई बार लोग ये होता है कि जीवन में आपने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, किसी मुकाम पे नहीं पहुंचे, तो आप ये कह देते हो कि नहीं मेरे में तो शुरू से ही वैराग्य भाव आ गया था, ठीक है ना। लेकिन ये वो नहीं है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें करना, सो ऑथेंटिसिटी ऑफ द पर्सन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए इन अनुभवों को आप थोड़ा और जो है वो ध्यान से सुने। तो थैंक यू जी ऑन दिस। आई हैव बीन अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, लाइक सो दैट इज माय कोर एरिया, एंड आई टॉक अबाउट साइंस। आई टॉक अबाउट, आई एम अ बिलीवर idea of that climate change is real and all those things, and I'm very what I call deep into the idea of science, and that science and numbers. But this is something that was happening all around me. And then after this experience, like there was another experience that I had. I was
You know, like it was 1996, 95, 96. I tell my father कि डैड मुझे ना अपने ग्रैंडफादर को मिलने आना है. मैं दिल्ली में था. कहते क्यों, क्या हो गया, अभी 3-4 दिन पहले ही तो गए हो वापस. मैं कहा नहीं यार, वो ही इज़ नॉट देयर टुमारो. सो कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो. मैंने कहा नहीं, कल वो 12 बजे के बाद नहीं है, तो इसलिए मुझे आना है मिलने के लिए. और मैं उनको एक दिन 24 घंटे पहले बोल रहा हूँ. मेरे फादर ने मुझे उस वक्त, मतलब पंजाबी हैं तो माँ बहन की गाली तो चलती है. सो माय फादर नेवर अब्यूज्ड, बट उन्होंने मेरे को माँ बहन की गाली दे के चुप करा दिया. बट अगले दिन आई स्टिल रिमेंबर द टाइम ऑल्सो. 11:42. There's a person in my class who comes and taps on my back, and I know that my grandfather is no more. Of course, then I went to Chandigarh and everything. So एक experience रहा. तो मतलब ये, I do not know why this was happening. I was getting to know things. In fact, I still remember there was this young girl who came to me and she wanted to get married and things. And I said, इस लड़के से तो तुम शादी भी नहीं कर सकती. कहते क्यों? मैंने कहा ये तो है ही नहीं, ये तो यहाँ खड़ा ही कैसे है, ये तो खत्म हो रहा है. And behold, he passes away in the next few weeks. So I do not know how this is all happening, and I'm getting scared by every moment that I'm seeing this. और इतनी देर में मैंने कुछ ना योगा के ऊपर भी अपना एक्सरसाइज वगैरह कर या प्रक्रिया शुरू कराई, और फिर मैंने छोड़ दिया कि मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंसेस बढ़ जाते हैं उससे. अगर आप ध्यान करें तो आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ जाते हैं. बट इसके बाद एक और एक्सपीरियंस था, जैसे माई 2 other experiences which were again very interesting. My brother, my Chacha ji was in hospital, and my brother was also in hospital at the same time. So unfortunately my Chacha ji passed away, and I'm just sitting next to my wife, and I said कि यार मेरे को लगता नहीं है कि मनु घर वापस जाने वाला है. कहते क्यों? मैंने यार चाचा जी तो यहाँ सामने खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं उसका. And I said, okay, now what is this? And I said, maximum 10 days and he's off. And my brother did pass away in 10 days. So these were the experiences that were happening. So what was happening is, जो शिव भाव था, शिव as a signifactor of death, I was starting to see that. And I started to feel यार कि कुछ तो है इस दुनिया के अंदर जो इससे बहुत बड़ा है. चाहे मैं अपने आप को एथीस्ट कह रहा हूँ, बट चीज़ उससे बड़ी है कहीं पे. इसके बाद ही there's another experience that I tell in my book, and that's again a very profound experience. You know, like my sister. I'm just keeping the experience to family because I don't want to talk about other sets of experiences because they are different. But my sister was pregnant, and she had a very terrible, difficult pregnancy because within the first month she was to be on the bed, and the doctors had said it is going to be very difficult. So I think within 4th month of her pregnancy, the doctors told that she is sinking and she's not going to survive and all those kind of things. So my mother calls me कि ऐसे मैं नहीं, कुछ नहीं होने वाला, मैं कल आऊँगा, और ये आपकी परिस्थिति है जहाँ पे ये है लड़की अभी जो निधि है. तो मैंने कहा मैं कल आऊँगा, आप बस निधि को जब मैं आऊँगा तो आप उस वक्त मुझे बस निधि के साथ 1 मिनट दे दीजिएगा, क्योंकि एंड आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड. आई वेंट टू दैट हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स उसको जवाब दे चुके हैं तब तक कि शी इज़ नॉट गोइंग टू क्रॉस द डे. आई जस्ट गो एंड आई डू समथिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक वॉट एवर वे आई होल्ड हर हैंड्स, एंड शी इज स्टिल अलाइव, शी हैज़ किड्स. और उसके बच्चे जो हैं, डॉक्टर्स ने उसकी डेट दी नवंबर ऑफ दैट ईयर. आई सेड ये भी पॉसिबल नहीं है यार, क्या बकवास कर रहे हो, बच्चे तो 15 सितंबर को होंगे, जो मर्जी कर लो. इन बच्चों ने 15 डेट डेस्टिन्ड है, इन दोनों ने 15 तारीख को आना है. और आई स्टिल रिमेंबर 14 सितंबर वी आर सिटिंग एट होम एंड मॉम टेल्स मी तेरी एस्ट्रोलॉजी यूजलेस. तो मैंने कहा यार माँ जो मर्जी कर लो, जो मर्जी डॉक्टर कह दे, ये बच्चे कल सवेरे आ जाएंगे. 4 o'clock we get a call from the hospital that she has to be operated because her water bag is broken, and she has the kids which are about 2.5 months premature, and they come to the world, they survive, and they become young men today. So what I'm saying is these are experiences which I was seeing
and I do not know how I could explain all these intuitive things that were happening. And this is where I thought I need to understand what is a bigger thing, what is that energy that is driving or is the driving force around us. और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, और जो आप विरोधाभास की बात कर रहे थे, देखिए एथीज्म एंड थीज्म की बात जो है, हिंदुइज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसके अंदर वो एथीस्टिक फिलॉसफी को भी अपनाता है, ठीक है ना जी। वो एक सिर्फ एक ऐसी फिलॉसफी है, बाकी सब जगह आप कुछ भी कर लीजिए, आप मानते हैं या नहीं मानते। मैं आज भी हिंदू हो सकता हूँ चाहे मैं बोलूँ कि मैं नहीं मानता। एक बहुत अच्छा मंत्र है, ओम हिरण्य गर्भा समावर्ता ताग्रे भूतस्य जाता पतिरे कयासी सदाधार पृथ्वी ध्यामुते कस्मै देवा यहा विशाल। इसके अंदर द आइडिया ऑफ क्रिएशन की बात हो रही है। हिरण्य गर्भ, वी केम फ्रॉम अ बॉल ऑफ फायर। Ball of fire, very good. So that means I can also proclaim it to be a mantra which tells me that there is no creator, but we came from a ball of fire. इस मंत्र को मैं कैसे इंटरप्रेट करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, और हिंदुइज्म मुझे अलाउ करता है। और ये यहाँ से मैंने कहा यार ये एथीस्टिक पर्सपेक्टिव भी है, बट ये बॉल ऑफ फायर का सिग्निफिकेंस शिव की अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत बड़ा है। और यही ज्योतिर्लिंग का भी अगर आप आइडिया देखें यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि द बॉल ऑफ फायर मीन्स व्हाट, दैट इफ यू केम फ्रॉम दैट बॉल ऑफ फायर, यूनिवर्स कितना बड़ा, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसका शुरू का है और अंत का है किसी को नहीं पता है। इनफैक्ट आज की तारीख तक तो ये बोलते रहे थे, अगर आज से 6 महीने या साल भर पहले आप पढ़ते तो कहते हैं यूनिवर्स जो है वो 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अभी कुछ स्टडीज आई हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि वो 26-27 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो अगर 27 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा यूनिवर्स है तो आप समझें कि आप कहाँ शुरू होंगे और कहाँ पे अंत होगा। मतलब ऑन दैट टाइम स्केल आपका तो औचित्य ही कुछ नहीं है, और मेरा और आपका तो औचित्य ही कुछ नहीं है उस टाइम स्केल के ऊपर भी। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 100 साल, 120 साल जी जाएंगे, उसके बाद तो खत्म। उसके बाद तो जाना ही है, जो मर्जी कर ले, साइंस आपको रोक ही नहीं पाएगी, आपने आगे जाना है और आपने जाना ही। तो उस 27 बिलियन ईयर के टाइम स्केल में आपका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दिस ऑल्सो गेव मी एन अंडरस्टैंडिंग कि यार हम लोग व्यर्थ में कई बारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो आपकी एक्सपीरियंसेस सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड हो जाते हैं। और एक्सपीरियंस विद माई फैमिली, विद पीपल लाइक यंग पीपल लाइक यू, एक्सपीरियंसेस अराउंड द वर्ल्ड एंड थिंग्स, तो ये सब चीज़ें थी। तो अगर हम बात करते हैं शिव की, भगवान, अगर आप उनको भगवान कहें या उनको आपने तो उनको समय कहा है एक तरीके से। हाँ, महाकाल उनका नाम भी है, काल इस समय। तो इट्स एन ऑल एक्सपैंडिंग बेसिकली जो है, मतलब सब लोगों ने समय, और मुझे लगता है कि जो हमारी अवधारणा रही है कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट रहा है कि टाइम इज़ अ लीनियर कॉन्सेप्ट जो है, तो शायद जो है उस कॉन्सेप्ट को जो है, जो शिव का जो महाकाल का कॉन्सेप्ट है वो मैच नहीं करता जो है। मतलब आप शिव को कैसे देखते हैं? आप शिव को एनर्जी, शिव को, मतलब अगर इनको इस यंगर जनरेशन को समझाना हो जो जिस भाषा में ये लोग समझते हैं, और ये मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के आईक्यू को वो नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का आईक्यू हमारी जनरेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो आप इनके लिए एक शॉर्ट में, क्योंकि समय कम है, कि शिव क्या है जो है। मेरे हिसाब से जी अगर आप देखें, मैं हमेशा ये कहा है कि शिव का जो मोस्ट पावरफुल आइडिया है, 2 चीज़ों पे है। एक तो शिवलिंग का आइडिया है और दूसरा उनका जो टाइम का पर्सपेक्टिव है। तो जब आप महाकाल की बात करते हैं, महाकाल को अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करें तो मीन्स व्हाट, मेगा टाइम, जो समय से भी बलवान है, जो समय से भी बड़ा है, जो समय को भी उसकी औचित्य देता है, ठीक है, वो महाकाल है। तो जिस चीज़ का शुरू और अंत मुझे नहीं पता वो शिव है। शिव इससे कम या इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आदि अंत, द बिगिनिंग एंड द एंड इज शिवा। देयर इज नथिंग एल्स टू शिवा। ना उनकी कोई छवि है, ना उनकी कोई मूर्त है, और बट वो एक एंडलेस फॉर्म है। और उस एंडलेस फॉर्म की अगर आप बात करें, उसको आप टाइम के स्वरूप में देखें,
क्योंकि अगर आप वो 26 बिलियन ईयर्स की बात करते हैं, उस टाइम स्केल पे आप क्या हैं? आप तुच्छ मात्र, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, नहीं हम सभी, है ना जी, हाँ है ना? आप तुच्छ मात्र मतलब लोग हैं। आज जो भी आदमी बड़ा है वो कल है ही नहीं, कल उसकी ना तो कोई याद है, क्योंकि समय उसको ख़त्म कर देगा। क्योंकि जो समय है, आज आपने अरस्तु और सकृतु के बारे में सुना, बट आज से 5000 साल बाद उनका भी नाम किसी को याद नहीं रहेगा, क्योंकि आज से 8000 साल पहले जो लोग थे उनका भी नाम याद नहीं। हाँ, हमारे कोई नाम याद है, भगवान राम का नाम याद है, भगवान कृष्ण का नाम याद है, बस। दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ शिवा। हाँ, शिवा कहें या विष्णु कहें, मतलब हाँ, उनके मैनिफेस्टेशंस हैं, बट उस एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो ऑन टाइम, सो एंड दैट इज वेयर आई ऑलवेज से वी शुड रिस्पेक्ट टाइम। समय इतना बलवान है क्योंकि ना तो मुझे इसके बाद आगे पता है, ना इसके पहले का पता है। और दिस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कई बारी मैं सोचता हूँ कि कई बारी हम ये सोचते हैं कि यार क्या रीबर्थ होता है कि नहीं होता है। अगर रीबर्थ नहीं होता, एज्यूमिंग फॉर अ मोमेंट नहीं होता, तो यही समय है ना जिसको आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपने लेना है, इसके अंदर इस एक्सपीरियंस को लेना है। क्या पता ये आप ही का लास्ट, अगर एज्यूम करें कि रीबर्थ है, तो ये शायद आपका लास्ट बर्थ भी तो हो सकता है। आपको आगे की यूनी में जाना है। अगर आप यूनी की बात करें तो अगर 84 लाख यूनियाँ हैं और 84 लाख लाइफ फॉर्म्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है वैसे, आई मस्ट शेयर। आज की डेट में द डॉक्यूमेंटेड लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ आर क्लोज टू दैट मच, जिसको आप 84 लाख कहते हैं। एग्जैक्ट फिगर 84 लाख नहीं है, इट इज क्लोज टू अबाउट 8.3 मिलियन लाइफ फॉर्म्स इन वॉट एवर, बट बहुत प्रोफाउंड चीज़ थी ये। एंड बट ऑल्सो रिमेंबर, इससे पहले 99% ऑफ स्पीशीज दैट हैव एवर वॉक्ड ऑन अर्थ have vanished or have diminished, have what I call experienced extinction. They've just gone. But आज की तारीख में आपकी 8.4 मिलियन के करीब हैं। So that means कि समय के साथ साथ, तो मुझे जब ये समय की बात समझ में आई, तो मुझे एक और चीज़ समझ में आई कि हम लोगों का जो एज अ स्पीशीज भी औचित्य कुछ नहीं है। हम अपने आप को बहुत एरोगेंट समझते हैं और एरोगेंस में ही ख़त्म हो जाएंगे। हम एक स्पीशीज़ हैं जो लगभग कुछ 1-8 मिलियन ईयर्स के हैं। अगर आप होमो सेपियंस को देखो तो इस फॉर्म में 40-50 हज़ार साल के हैं, शायद 40-50 हज़ार साल और रह जाएंगे, उसके बाद हम ख़त्म हैं। सो उसके बाद कोई और नया एवोल्यूशनरी साइकिल में नया लाइफ फॉर्म आएगा। सो दिस ऑल्सो गिव्स मी अ वेरी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग कि समय इतना बलवान है कि समय की टाइम चीज़ पे पराकाष्ठा कहें उसको या वट एवर ऑन दैट स्ट्रेंथ, वी विल जस्ट वैनिश एंड रिस्पेक्ट टाइम। और भगवान का जो आइडिया था, भगवान को भी मैं उसको एज अ पर्सन नहीं सोचता। मुझे जितना मैंने पढ़ा उसके बाद मुझे समझ में आया भगवान भी 5 एलिमेंट्स ही, भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर। तो अगर वो 5 एलिमेंट्स हैं तो मुझे नेचर का आदर करना है। बट प्रॉब्लम आज की तारीख में ये है कि जिस कल्चर ने हमें इतनी डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दी, उस कल्चर को ना तो हम समझते हैं, ना हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और ख़ासकर अपने साथ में एनवायरनमेंट की तो बिल्कुल नहीं कर रहे आज की तारीख में। तो फिर जाऊँगा अमित जी, करें वाइंड अप? नहीं, बस एक चीज़ और बोलूँगा। ठीक है, नहीं वो मुझे पता था इसीलिए मैंने उससे पहले। हाँ जी। तो इसके ऊपर मैं एक और चीज़ बोल रहा था, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, शिव की एक और मीनिंग है और इसके ऊपर बहुत इटर्नल डिबेट चलता रहता है कि शिवलिंग का मतलब क्या है। तो अगर आप कभी देखें, शिवलिंग को लॉट ऑफ टाइम्स ये कहेंगे कि यह एक लिंग है और योनि। तो कई लोग इससे ना, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि आप इसको ऐसे क्यों बोल सकते हैं। बट द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग एंड योनि इटसेल्फ। क्यों? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? मैं भी अंश हूँ उस पावर का। आप भगवान कब हैं? आपका भगवान कौन है? मतलब सर बैठे हैं, आप बैठी हैं मैडम, आपका भगवान कौन है? आपके भगवान तो आपके माँ बाप हैं, क्योंकि आप उनकी प्रोजेनी हैं, आप उनकी क्रिएशन है। तो जब शिव और पार्वती का जो आपने दिखाया है, वहीं पे आप भगवान हैं। हर आदमी में भगवान विराजमान है, हर आदमी में, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग। और दिस ऑल्सो टेल्स मी अबाउट द ब्यूटी ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स व्हाट? एवोल्यूशन मीन्स मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेंचुअली क्या है। कई लोग इसको कहेंगे बहुत नेगेटिव व्यू है
इवेंचुअली एज अ स्पीशीज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये है कि हमारी स्पीशीज आगे चले. नॉलेज है वो सब है, बट स्पीशीज आगे चलती है, वहीं से एवोल्यूशन है और वहीं पे समय उसको आगे लेके जाएगा. शिव इसका रिफ्लेक्शन है. शिव इज रिफ्लेक्शन ऑफ क्रिएशन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्डर. लेट्स नॉट डिसरिगार्ड दैट कंस्ट्रक्ट. शिव टेल्स मी दैट यस यू कैन ऑल्सो बी द क्रिएटर. शिव ही एक ऐसा स्वरूप है जो बोलते हैं कि आप ही भगवान हैं. ठीक है, भगवान मतलब ये नहीं है कि हमें एरोगेंस हो जाना चाहिए, मतलब वो नहीं है. भगवान मीन्स कि आप फिर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए अगर भगवान है तो. हाँ, तो इसलिए तो वो है. तो ये बात है जी. सम बेसिक आइडियाज. हाँ जी सर. तो ऐसा है कि प्रश्न पूछने का समय वैसे है नहीं, लेकिन अगर किसी का हो तो. नहीं, उन्होंने कर दिया सर, वो कर दिया. अच्छा, मैं इसका वो करता हूँ, ये थोड़ा लंबा इसका जवाब होगा, जो है आप पुस्तक पढ़िए, ठीक है ना. तो उसमें वो रहेगा. अभी एक्चुअली क्या, अमित जी की फ्लाइट भी है तो इस वजह से, बट जो है तो कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं. एंड इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू अमित जी हियर एंड ग्रेट सेशन. और मुझे लगता है पुस्तक आप लोगों को पढ़नी चाहिए. तो पुस्तक आप लोगों को पढ़नी चाहिए, वो इसलिए भी कि आई थिंक आप लोगों की जो जिस भाषा को आप समझते हैं उसमें लिखी गई है, बहुत बड़ी किताब नहीं है. डू रीड द बुक, ठीक है ना. और जो है आई थिंक इट वाज ग्रेट एंड वंडरफुल टू हैव यू ऑल हियर. थैंक यू सो मच. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, and I hope I did not bore you to death with my stories or experiences, and thank you, and I hope the light. हाँ, पर समय का मतलब हम तुच्छ हैं, और ये सब जो है ये सोच के ये नहीं है कि आप जाके किताबें अपनी सब कॉलेज की पैक करके रख दो कि होना तो कुछ है नहीं, जाना तो है ही एक दिन. अब क्या करना है ये सब करके जो है. बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू, नॉट टू साउंड थिंग, मतलब मैंने अपने लाइफ में बहुत रिस्क लिए. मैं प्रोफेसर बना और आई हैव क्रिएटेड माई ओन इंस्टीट्यूशन सेट अप इन अ बॉडी ऑफ वर्क, एंड पॉसिबली आई जस्ट, अब नहीं बताया तो आई कैन जस्ट शेयर दिस ऑन थिंग. I am one of the people who is on the Hall of Fame at Harvard also. So my work on economics is significant enough to have that. So I have continued to work in my area. This is a side hustle, if you might say, or something that I'm experiencing, and I thought I should take it to the world and possibly talk about it. Thank you. Yeah, I hope to see you people, you know, 5-7 साल में 10 साल में जो है बात लोग निकले, तो मुझे लगता है कि इस बात का सबसे ज़्यादा डिफरेंस तब रहेगा कि हम सामने बैठे हों और आप लोग जो है वो जिस तरफ बैठ के जो है हमें अपनी किताब के बारे में बताना. सो प्लीज बिल्कुल यही होना चाहिए. एंड में DOD का मतलब जब गॉड बोलते हैं तो जनरेट ऑपरेटिंग डिस्ट्रॉय, राइट, दैट इज अ साइकिल दैट वी हैव टू गो थ्रू. ओम का मतलब भी वही है. तो आप वहाँ से reconstruct yourself, redefine yourself every second day. These are very deep meanings. In fact, आप नहीं भी मानते तो but still these are very deep relevant. Thank you. Thank you, sir. Your insight on Shiva has really put a great light of knowledge to all these audience, and thank you audience. I'm confident that the audience is leaving with a wealth of stimulating ideas and perspectives shared by our distinguished guest today. Thank you all for joining us. Happy wisdom. Thank you.